पिता पुत्र पवित्र आत्मा को स्तुति हो। आज भी यीशु के जरिए परमेश्वर के सन्निधि में थोड़ा समय बैठने के लिए, आराधना देने के लिए और उनका पवित्र वचन सुनने के लिए हमें प्रभु तैयार कर रहे, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आज का दिन प्रभु हमें संभाल कर रखा, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। हर एक विपत्ति से, दुखों से हमें संभाला, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। गया 15 दिन से हम सुन रहा है प्रभु यीशु मसीह का मनवाटी सभा का नाम क्या क्या है करके चिंता कर रहा था। कल परसों हम लोगों ने चिंता किया, पवित्र नगर के बारे में हम चिंता कर रहे। വിശുദ്ധ നഗരത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധ നഗരത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെയും കേട്ടു, ഇന്നും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയായി കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നു. വിശുദ്ധ നഗരത്തിൽ നാം എല്ലാവരും എത്തിച്ചേരുവാനിടയായിത്തീരണം. ആരാണ് വിശുദ്ധ നഗരത്തിൽ എത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഇന്നലെ വായിച്ച വചനത്തിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് വായിക്കാം. പിന്നെ പ്രകാശിത് വാക്യ का 3 अध्याय का 12 वचन हमने पढ़ा. ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ഒരു തൂണാക്കും, അവൻ ഒരിക്കലും അവിടെ നിന്ന് പോകുകയില്ല. എൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ നാമവും എൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങുന്ന പുതിയ യെരൂശലേം എന്ന എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരത്തിന്റെ നാമവും എൻ്റെ പുതിയ നാമവും ഞാൻ അവൻ്റെ മേൽ എഴുതും. അതെ, ജയിക്കുന്നവന് ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും? ആ നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള അധികാരം കൊടുക്കുന്നു. ജയിക്കുന്നവനെ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ ഒരു തൂണാക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവൻ ഒരിക്കലും അവിടെ നിന്ന് പോവുകയില്ല. കബി വോ ഉദർ സെ ജായേഗാ നഹീം. जय इस दुनिया को जय प्राप्त कर कर कौन परमेश्वर के सन्निधि में पहुंचेगा, उस व्यक्ति कभी स्वर्ग राज्य से किधर जाएगा नहीं, उसको उधर से निकालेगा नहीं. हालेलूया. ഉദർ സ്ഥിരവാസ് മിൽനെ വാലാ ഹെ. സ്ഥിരമായി അവിടെ വസിക്കുവാൻ കഴിയും. നമ്മളെ ഒരിക്കൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറഞ്ഞു വിടുന്ന ഒരവസ്ഥയല്ല. നമുക്കറിയാം, ഗൾഫിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഗൾഫിൽ പോയി താമസിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ജനങ്ങളെ പരദേശിയാന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വിടും. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടും. അതുപോലെയല്ല, നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ നീ പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടുകയില്ല. അവിടെ പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഒരിക്കലും അവിടെ നിന്ന് പോകയില്ല എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കബി ഭി ഉദർ സേ തും ജാओ करके बोलेगा नहीं. हालेलुया. यही परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने वाला को उधर स्थिर वास मिलने वाला है. അവിടെ പറയുന്നു, എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമവും तो परमेश्वर का उधर पहुँचने वाला को परमेश्वर का नाम मिलेगा. और എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന പുതിയ യെരൂശലേം എന്ന എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരത്തിൻ്റെ നാമവും നൽകും. तो वो नगर का नया यरूशलेम, नहीं तो पवित्र नगर का वो नाम भी हमारे साथ रहेगा. तो हमें वो नाम लेकर പുക്കാറിനെ വാലാഹെ. നമുക്കറിയാം, ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നെടുമുടി വേണു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നെടുമുടിമേ വസിച്ച വേണു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ പേരിനോടൊപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ നഗരത്തിൻ്റെ പേരും ചേർത്ത് विलिखिम। हालेलुया। पवित्र नगर का नाम भी हमारे नाम के साथ जोड़कर हमें बुलाएगा। फिर उधर लिखा है एंडे पुदिय नामവും ഞാൻ അവൻ്റെ മേൽ എഴുതും। तो परमेश्वर उधर पहुँचेगा तो हमें एक नया नाम भी देने वाला है करके उधर से हमें मालूम पड़ता है। तो आज हम उसका 20वां वचन 20 से पढ़ेंगे। 20वां वचन में ऐसा लिखा है, जय प्राप्त करने वाला
कौन सा चीज में जय प्राप्त करने का करके आज हम देखेंगे। 20 से पढ़िए। ഞാൻ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു, ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ അത്താഴം കഴിക്കും. उसका 19 भी पढ़िए. എനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെയൊക്കെ ഞാൻ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ആകയാൽ നീ ജാഗ്രതയുള്ളവനായിരിക്കുക, മാനസാന്തരപ്പെടുക, ഞാൻ വാതിൽ വന്ന് മുട്ടുന്നു. 19 और 20 हिंदी में पढ़िए. हालेलुया। देखो मैं जिन 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 से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्लंघन और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगम में हो और मन फिरा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरा साथ। हालेलुया, हालेलुया। उधर लिखा है मेरे प्रिय बच्चे लोगों को, नहीं तो मैं जिन जिन से प्यार करता है उन सभी को मैं शिक्षा देगा, ताड़ना देगा। इसके लिए क्या करने का, इसके लिए जागृता से बैठने का है और मन फिरा कर बैठने का है करके बोलते हैं। तो हम परमेश्वर का प्रेमी है, तो परमेश्वर हमें प्रेम करते हैं, तो हमें परमेश्वर क्या करते हैं, हमारा हमें शिक्षा भी देते हैं, गलतियों का शिक्षा भी मिल जाता है और मन फिरावा में लाने के लिए वो हमें ताड़ना देते हैं करके लिखा है. ഞാൻ പ്രിയമുള്ളവരെയൊക്കെ ഞാൻ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ആകയാൽ നീ ജാഗ്രതയുള്ളവനായിരിക്കുക, മാനസാന്തരപ്പെടുക. तो मन फिरावा होकर जागृता से परमेश्वर का आवाज़ सुनने के लिए, नहीं तो उनको स्वीकारने के लिए जो बैठेगा उनके पास, उनके द्वार के पास आकर परमेश्वर टोकेगा करके लिखा है. 20वां भजन में बोलते हैं मैं तुम्हारा द्वार के पास. ये द्वार के पास क्यों आते हैं, हम मनुष्य को द्वार है क्या? तो इसके लिए हम सीखा है हम मनुष्य परमेश्वर का मंदिर है, मंदिर को द्वार रहते हैं. हालेलुया. इसके लिए परमेश्वर बोलते हैं मैं आकर तुम्हारे द्वार के पास टोकेगा. हम होने वाला मंदिर का द्वार के पास परमेश्वर टोकेगा, जो खोल के देगा उनके साथ वो खाना खाएगा करके उधर लिखा है. और उसका 21 में क्या लिखा है देखो, ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ എന്നോടുകൂടെ എൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ വരം നൽകും. हालेलुया. पढ़िए हिंदी में. जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, और जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन बैठा आया. देखा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जैसा जय पाकर इस दुनिया को जय पाकर परमेश्वर के पास पहुंचा, तो परमेश्वर वादा किया हुआ सिंहासन यीशु प्रभु को दिया है. वैसा ही यीशु प्रभु बोलते हैं इस दुनिया का मैं जैसा जीता है वैसा ही जीत पाकर आने वाला को मैं भी क्या देगा, मेरे साथ सिंहासन में बैठने के लिए कृपा देगा. हालेलुया. उनके यीशु मसीह के साथ सिंहासन में बैठने के लिए कृपा मिलेगा. और तो परमेश्वर का हम कौन सा चीज़ से जय प्राप्त करने का है करके देखो. कोरिंदी लेखन पढ़िए. हम 3 चीज़ से जय पाने का है इस दुनिया में. एक जड़ हमारा शरीर से जय पाने का है, और दुनिया इस दुनिया से जय पाने का है, और शैतान से हमें जय पाने का है. एफेसी लेखन देखो 5वां अध्याय का 3रा वचन जरा पढ़िए.
5 का 3 जैसे पवित्र യാതൊരു लोग അശുദ്ധിയും के योग्य അത്യാഗ്രഹവും है, നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പേർ പറകെ പോലും അരുത്. ഇങ്ങനെയാകുന്നു വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഉചിതം. हाँ हिंदी में पढ़िए. जैसे पवित्र लोग के योग्य है, वैसे तुम में विभचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम का लोभी की चर्चा तक ना हो. लोभी की चर्चा भी नहीं होने का, कोई व्यभिचार नहीं करने का, कोई गलत करने का नहीं, परमेश्वर को छोड़कर दूसरा किसी से प्रार्थना नहीं करने का, ये व्यभिचार है. परमेश्वर बोलते हैं तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर बनाओ, मीन्स तुम्हारा जड़ तो जय प्राप्त करना पड़ेगा. जड़ में, शरीर में, नहीं तो हमारा देह में हम जय कैसा पाएगा? इसके अंदर अशुद्धि नहीं आने का, इसके अंदर यीशु को बिठाने का, परमेश्वर को इसके अंदर बिठाने का, तभी जय प्राप्त करेगा. इसके लिए परमेश्वर आकर, यीशु प्रभु आकर हमारा द्वार पर आकर ठोकते हैं. ठोकने का समय खोल कर देने के लिए, बिंदास खोल के देने के लिए मान होना मांगते हैं. हालेलुया. हम कोई लोभ में, कोई प्रवृत्ति में और व्यभिचार में हम बने रहेगा तो हमें परमेश्वर के लिए खोल कर देने के लिए तकलीफ होएगा. जल्दी खोलता नहीं. इसके लिए परमेश्वर बोलते हैं तुम्हारा देह को, शरीर को जय प्राप्त करो. हालेलुया. शरीर में जय प्राप्त करना पड़ेगा. दूसरा देखो, कोरिन्थी लेखन 4 का 10 पढ़िए. कौन सा? पहला कोरिन्थी, सेकंड कोलोसियन पढ़िए. कोलोसियन 4 का 10 पढ़िए. अरिस्तिस्तु क्रूस जो मेरे साथ कैदी है, और मरकुस जो बरनबास का भाई लगता है, जिसके विषय में नहीं, कोरिन्थी 4 का 10 होगा. पहला कोरिन्थी देखो, हालेलुया, स्तोत्रम. पहले कोरिन्थी का 4 का 10 पढ़िए. ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തു നിമിത്തം ഭോഷന്മാർ, നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ വിവേകികൾ. ഞങ്ങൾ ബലഹീനർ, നിങ്ങൾ ബലവാന്മാർ. നിങ്ങൾ മഹത്തുക്കൾ, ഞങ്ങൾ മാനഹീനർ അത്രേ. ഈ നാഴിക വരെ ഞങ്ങൾ വിശന്നും ദാഹിച്ചു ഉടുപ്പാനില്ലാതെ. तो परमेश्वर बोल रहे हैं इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, समझ लो, तो भी तुम्हारा शरीर गलत प्रवृत्ति के लिए देना नहीं है करके उधर से हमें मालूम पड़ता है. तो कुछ भी नहीं है, बलहीन है, तकलीफ में है, फिर भी वो शरीर, वो जड़ कभी भी परमेश्वर के लिए हमें जय प्राप्त कर जीना है. रोग आया, दुख आया, प्रश्न आया, तो भी हमारा परमेश्वर का स्थान हमारे से दूर नहीं हटने का है. परमेश्वर को हमारे अंदर का अंदर ही बैठना मांगते हैं. ऐसा ही हमारा जीवन में हमारा प्रवृत्ति आगे बढ़ने का है. तो हमें जड़ को, शरीर में जय प्राप्त कर सकता है. हालेलुया. और देखो सभा प्रसंग, देखो 10 का 4 में क्या लिखा है. सभा प्रसंगी सबूद्योपदेश. അവകാശം നേടിത്തരികയും ചെയ്തു. അത് നമുക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നു. നമുക്ക് 10 का 4 ഉറപ്പായിട്ട് രക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷം ലഭിക്കും. जल्दी जल्दी पढ़िए. അധിപതിയുടെ കോപം നിന്റെ നേരെ പൊങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ നീ നിന്റെ സ്ഥലം വിട്ട് മാറരുത്. ശാന്തി മഹാപാതകങ്ങളെ ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ കാരണമാകും. അധിപതിയുടെ പക്കൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന തെറ്റുപോലെ ഞാൻ സൂര്യന് കീഴെ ഒരു തിന്മ കണ്ടു. जो शांति से रहेगा तो महापाप हमारे अंदर आएगा नहीं है करके लिखा है. हमारे अंदर कोप, क्रोध
वाग्वाद ये सब आएगा तो हम अशांत हो जाता है और हमारे अंदर पाप आ जाता है करके लिखा है। इसके लिए हमारा शरीर पाप हमारा शरीर में होएगा तो हमें जय प्राप्त किया हुआ एक व्यक्ति है करके बोल नहीं सकता है। इसके लिए परमेश्वर बोल दे तुम्हारा जीवन में तुम कौन सा चीज से फेल हो जाता है उस चीज से तुम मिल गया करके अपने को मालूम पड़ता है। इसके लिए നമ്മൾ ഏത് കാര്യത്തോട് തോറ്റു പോകുന്നോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാട്ടുനിങ്ങളെ കാണിക്കുമ്പോൾ അവരോടൊപ്പം വളരെ ഉറക്കെ നിങ്ങൾ ഇത് ഏറ്റുപറയുക. ജയം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ തോറ്റു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. നമ്മൾ തോറ്റവരാണ്. നമുക്ക് ജയം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന എല്ലാം തോൽവി സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കണം. നാം തോറ്റവരായി ജീവിപ്പാൻ ഇടയാകാതെ കർത്താവ് പറയുന്നു ശരീരത്തെ ജയിക്കണം. ഏതെല്ലാം പ്രതികൂലങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോയാലും ഏതെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോയാലും ശരീരത്തെ പാപത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അശുദ്ധിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കരുത് എന്ന് ദൈവം പറയുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമായി തന്നെ സൂക്ഷിക്കുവാനിടയായി തീരണം. പിന്നെ ലോക ചിന്തകൾ നമ്മളിൽ കടന്നു വന്നിട്ട് നമ്മൾ പാപത്തിൽ അകപ്പെടാൻ ഇടയാകരുത്. സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ ജയിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരണം. സ്വർഗത്തെ നോക്കി ജയിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരണം. हमें हमारा यीशु जय प्राप्त किया वैसा ही हमारा जीवन में जय प्राप्त करना मांगते हैं. यीशु अपना शरीर में जय प्राप्त कर जिया. दुनिया का सभी चीज़ में जय प्राप्त कर जिया और शैतान से भी यीशु जय प्राप्त कर जिया. तो सभी उसके लिए हमें पहले कोरिन्थियन पहले अध्याय का 5वां वचन पढ़ेगा तो उधर मालूम पड़ता है യേശുവിൻ്റെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം നിങ്ങളിൽ ഉറപ്പായിരിക്കുന്നത് പോലെ അവനിൽ നിങ്ങൾ സകലത്തിലും വിശേഷാൽ സകല വചനത്തിലും സകല പരിജ്ഞാനത്തിലും സമ്പന്നരായി തീർന്നു. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു കൃപാവരത്തിലും കുറവില്ലാത്തവരായി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത കാത്തിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. हिंदी में जरा पढ़िए. हम यीशु के समान हम होना है. जो चीज़ में यीशु के समान होना है पढ़िए. पहले कोरिन्थियन पहले अध्याय का 5वां वचन. कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए कि मसीहा की गवाही तुमको पक्की निकली. हालेलुया. सभी बातों में हम यीशु के समान होना है करके उधर लिखा है. तो यीशु का गवाह बनकर हमें जीना है. यीशु इसके लिए हमारे सामने गवाह बनकर आया है. तो कौन सा वचन में हमें स्थिर होना है और परमेश्वर का ज्ञान में संपन्नता प्राप्त करने का है और सभी कृपा वरदान प्राप्त कर हमें जीना है इस दुनिया में. तो ही हमें इस दुनिया को जीत सकते हैं करके परमेश्वर उनका वचन के द्वारा हमें सिखा रहा है. तो जय प्राप्त करने वाला को परमेश्वर स्वर्ग राज्य में उनका नाम दे देगा और उनका राज्य का वो पवित्र नगर का नाम भी हमारा नया नाम से जोड़ देगा. तो हमें उधर स्थिर वास के लिए हमें तैयार कर रहे परमेश्वर. इसके लिए हमें उधर पहुंचने के बाद किधर जाओ करके बोलने वाला नहीं है हमारा परमेश्वर. उधर हम परमानेंट हमारा वास हम उधर करेंगे. अभी हम यशायाह प्रवचन में देखेगा यशायाह 65 में यशायाह प्रवचन 65 का 17 हम पढ़ेंगे. क्योंकि देखो
मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ। और पहली बात स्मरण रखो, स्मरण रखना रहेगी और सोच विचार में भी ना आएगी। ऐसे यह प्रवचन 17 में बोल रहा है, मैं नया आकाश और नया भूमि सृष्टि करने वाला है। तो फिर जूना भूमि कोई याद नहीं रखेगा, जूना वाला कोई याद नहीं रखेगा। नया भूमि और नया आकाश सृष्टि करने वाला है करके उधर लिखा है। तो हमने देखा प्रकाशित वाक्य में हमने देखा नया भूमि और नया आकाश सृष्टि कर रहे करके उधर भी लिखा है। यशायाह प्रवचन में यीशु जन्म होने के बहुत 600-700 साल पहले लिखे रखा है प्रवाचक के द्वारा, मैं नया भूमि सृष्टि करने वाला है और नया भूमि में प्रवेश करने वाला व्यक्ति कोई भी जूना के बारे में चिंता नहीं करेगा। हालेलुया। कल हमने चिंता किया, जूना चीज हम भूल जाना मांगते हैं, जूना स्वभाव हमें उतारना मांगते हैं, जूना चिंता, जूना प्रवृत्ति, जूना स्वभाव सब कुछ हमारे जीवन से निकलेगा तो ही हम स्वर्ग राज्य का नया व्यक्ति बन सकता है, नया राज्य में हम प्रवेश कर सकता है करके उधर से मालूम पड़ता है। और 17 थोड़ा नीचे पढ़िए, उधर बहुत कुछ पढ़ने के लिए है। इसीलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो परमेश्वर बोलते हैं वो नया आकाश नया भूमि सृष्टि करने का समय, नया यरूशलेम में जो कोई पवित्र नगर में जो कोई प्रवेश करेगा वो हर्षित हो जाएगा, उल्लसित हो जाएगा, उनको कोई दुख संकट नहीं रहेगा, खुशी के ऊपर खुशी रहेगा उधर। और उसका 20वें वचन में लिखा है उधर रोना पीटना नहीं है, उधर वो रोना पीटना का आवाज ही नहीं है। और जो थोड़ा दिन जीने वाला बच्चे लोग पैदा नहीं होता है, जो भी है वो लंबा आयु लेके ही जिएगा। हालेलुया। थोड़ा दिन का जीवन उधर नहीं है, हजारों साल उधर जीने वाला है। हालेलुया। इसका मतलब है कोई उधर मरता नहीं है। हालेलुया। लंबा जीवन, ओ आयु हमारा इतना लंबा रहेगा, जी प्रभु को स्तुति करते करते खुशी का जीवन उधर बिताते रहेगा। हालेलुया। तो अभी 66 का 22 पढ़िए। ऐसे ही प्रवचन 66 का 22। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर बोलते हैं जितना दिन मेरा नया आकाश और नया भूमि बने रहते हैं उतना दिन तुम्हारा नाम भी बने रहेगा। वही हम प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 12वें वचन में पढ़ा, तुम्हें उधर से जाओ करके बोलेगा नहीं। हालेलुया। तू उधर परमानेंट रहेगा। जैसा नया आकाश और नया भूमि परमानेंट है, वैसा ही तुम्हारा नाम भी, तुम्हारा जीवन भी उधर परमानेंट रहेगा करके बोल रहे। हालेलुया। इसके लिए नया आकाश और नया पृथ्वी प्रभु बनाने के बाद हमें उसी में प्रवेश करने का समय, नया पवित्र नगर बनाने का समय, नगर बनाकर हमें उधर लेकर जाने का समय, हम उसमें एंट्री करने के लिए आज का दिन हम प्रार्थना, मन फिरावा और पाप पश्चाताप ये सब करने के लिए परमेश्वर बोल रहे। इतना सुंदर जीवन, इतना अच्छा जीवन हमें मिलने वाला है। इसके लिए इस दुनिया में जीकर ये गलती
को छोड़ना मांगते हैं, ये दुर्स्वभाव को छोड़ना मांगते हैं, ये गलत चिंता को छोड़ना मांगते हैं, जड़ी के चिंता को छोड़ना मांगते हैं, इस दुनिया का चिंता को छोड़ना मांगते हैं। हालेलुया। सब कुछ छोड़कर परमेश्वर का नया पवित्र नगर में प्रवेश करने के लिए चिंता रखकर हमें जीने का है। हालेलुया। फिर यशायाह 51 में देखिए, यशायाह 51 का 6 पढ़िए। वचन यशायाह 51 वचन 6। 6। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश दुए के समान लोप के जाएंगे, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले ये ही जाते रहेंगे। परंतु जो उद्धार में करूंगा वह सर्वदा ठहरेगा और मेरे धार्मिक का अंत ना होगा। हालेलुया। हालेलुया। पर उसका मलयालम में पढ़िए। നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവീൻ, താഴെ ഭൂമിയെ നോക്കുവീൻ. ആകാശം പുക പോലെ പോയി പോകും, ഭൂമി വസ്ത്രം പോലെ പഴകും, അതിലെ നിവാസികൾ കൊതുക് പോലെ ചത്തുപോകും. എന്നാൽ എന്റെ രക്ഷ എന്നേക്കും ഇരിക്കും, എന്റെ നീതി നീക്കം വരികയില്ല. നീതിയെ അറിയുന്നവരും ഹൃദയത്തിൽ എന്റെ ന്യായപ്രമാണമുള്ള ജനവുമായുള്ളവരെ എന്റെ വാക്ക് കേൾപ്പീൻ. हालेलुया। जो व्यक्ति बच जाएगा, ये भूमि और आकाश निकल जाएगा। एक वस्त्र जूना हो गया तो कैसा फेंकते हैं, वैसा ही परमेश्वर ये जूना भूमि को और जूना आकाश को निकाल कर फेंक देगा। और उधर लिखा है उसका निवास करने वाला लोग जैसा एक मच्छर मरते हैं वैसा ही मर जाएगा बोलते हैं। हालेलुया। मगर मेरा प्रमाण, मेरा वचन किसके अंदर है, वो रक्षा प्राप्त करेगा, उद्धार में आएगा और पवित्र नगर में प्रवेश करेगा। हालेलुया। और उसका 9 तक पढ़िए। യഹോവയുടെ ഉണരുക, ഉണരുക, ശക്തി ധരിച്ചുകൊള്ളുക, പൂർവകാലത്തും പണ്ടത്തെ തലമുറകളിലും എന്ന പോലെ ഉണരുക. രഹേബിനെ വെട്ടി മഹാസർപ്പത്തെ കുത്തിക്കളഞ്ഞത് നീയല്ലയോ? तो इसके लिए परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर का जन बनकर हम जगा हुआ बनो। परमेश्वर का जन बनने के लिए, उनका प्रमाण के अनुसार जीने के लिए, उनका सुसमाचार सुनो, उनका वचन सुनो, वो वचन ग्रहण कर कर हमारे अंदर रखो करके परमेश्वर बोल रहे। क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है, प्रमाण है, उसी को ही वो पवित्र नगर में प्रवेश करने के लिए मिलेगा। नहीं है तो हम एक मच्छर मरते हैं वैसा मर जाएगा। मीन्स ये दुनिया हट जाएगा तो ये मच्छर को कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा ही हम भी बिना वैल्यू का रहेगा, हमें कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। हालेलुया। इसके लिए हमारा जीवन को बहुत ही सुंदर जीवन परमेश्वर ने दिया है। अभी भी भूमि में भी सुंदर जीवन परमेश्वर दिया है। ये सुंदर जीवन को परमेश्वर में वचन में जीकर एक सुंदर दुनिया में प्रवेश करने के लिए हमें परमेश्वर बुला रहा है। हालेलुया। इसके लिए हमारे लिए पवित्र नगर बनाकर, कल हमने पढ़ा 12 डायमंड से बनाया हुआ, 12 डायमंड है ना। हमारा घर और पवित्र नगर 12 डायमंड से बनाया हुआ है। हालेलुया। सोने से उसका रोड सब सोने से बनाया गया है। हालेलुया। वो नगर में सोना से रोड बनाया। हालेलुया। इधर सोना के लिए लोग भागते हैं, चोरी करते हैं, मगर परमेश्वर का पवित्र नगर का रोड भी सोना है। हालेलुया। इसके लिए हमें ये सोने के पीछे उधर सोना को कोई वैल्यू नहीं है, मगर परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना बहुत ही जरूरी है। हमको इस दुनिया का ये गंदगी से हमें उस पवित्र स्थान में हमें पहुंचने का है। इसके लिए हम तैयार करेंगे।
ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ നഗരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നാം എല്ലാവരും ഒരുക്കപ്പെടുവാൻ ഈ വചനം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. നമ്മളെല്ലാവരും വിശുദ്ധ നഗരത്തിൻ്റെ പ്രവേശിക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ന്യായപ്രമാണം, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിൽ പ്രവേശിച്ച് യുഗാനുയുഗ അല്ലെങ്കിൽ അന്തമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ, മരണമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ. അതിനായിട്ട് ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മളേവരെയും ഇടയാക്കട്ടെ. ഈ യൂട്യൂബിൽ കൂടി സൂമിൽ കൂടി കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ദൈവം ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വചനത്തിന് വിരമിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാം. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം. അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറന്നു പോകരുത്. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.